Hello everyone, a very warm welcome to LearnWiz. I hope you all are doing really well and आप सबकी पढ़ाई बहुत ही अच्छे से चल रही होगी. So as usual, first of all, I would like to inform you that apart from mathematics, our channel also contains a lot of content for physics, chemistry and biology. Do check them out, and if you find them useful and want to appreciate us, you can do so by liking and sharing our videos. You can also consider subscribing to the channel so that you can get timely updates related to any new upload. Alright, so let's come back to our topic. The topic that we are going to study today is the most important topic of this whole trigonometry. आज ये जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ट्रिग्नोमेट्री में. मैंने ऑलरेडी फर्स्ट लेक्चर में आपको कहा था कि ये टॉपिक ऐसा है जिसमें स्टूडेंट्स को डिफिकल्टी होती है. आई डोंट नो व्हाई, बट उन्हें डर लगता है इस टॉपिक से. तो आज हम कोशिश करेंगे कि हम इस चैप्टर को इतनी अच्छी तरीके से तैयार कर लें कि हमें इसके क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने में कोई प्रॉब्लम ना हो. और इस चैप्टर में बेसिकली हमें क्वेश्चंस ही सॉल्व करने हैं. कोई नया कंसेप्ट नहीं आने वाला. मे बी वन और टू न्यू कंसेप्ट विल बी देयर, बट मोस्टली जो हम ऑलरेडी पढ़कर आ रहे हैं उन्हीं रिजल्ट्स और उन्हीं रिलेशंस को हम यहाँ क्वेश्चंस में यूज कर रहे होंगे. फाइन. तो सबसे पहले मैं ये बता दूं कि इस चैप्टर को बहुत ही ध्यान से पढ़ना है. जो भी मैं क्वेश्चंस यहाँ पर कर रहा हूं उन सारे क्वेश्चंस को आपको लेक्चर के बाद खुद से प्रैक्टिस करना है. और उसके बाद आपके पास जो भी बुक्स हो वहां से आप जितने से ज्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाए और प्रैक्टिस कर पाए उतना बेटर है आपके लिए. सो प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस वेरी पर्टिकुलर टॉपिक. फाइन. वैसे तो पूरा ट्रिग्नोमेट्री ही प्रैक्टिस मांगता है, बट इस टॉपिक में स्पेशली आपको ज्यादा प्रैक्टिस करनी है. ऑल राइट. क्वेश्चंस आज हम बहुत सारे क्वेश्चंस सॉल्व करने वाले हैं. मैं क्वेश्चंस बेसिकली आर एस अग्रवाल की बुक से लूंगा, बट in the subsequent lectures we will also be solving questions from other books like RD Sharma and NCERT of course, and we will also be solving some previous year questions, but we will have a separate session for all of them. आज जो भी क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे वो बेसिकली आर एस अग्रवाल के बुक से होंगे. फाइन. So before I start this topic, that is trigonometric identities, I want to tell you that what do you mean by a trigonometric identity. So सबसे पहले हम ये देखेंगे कि trigonometric identity होती क्या है. Fine. So let's look at the definition. What is trigonometric identity? It is nothing but an equation given which is true for every value of theta. That means whatever the value of theta we put in that equation is going to be satisfied. Fine. एक बार इसका formal definition लिखते हैं and after that I will try to explain what does it actually mean. Fine. So what is it? It is an equation an equation consisting of trigonometric ratios of an angle is called a trigonometric identity. A trigonometric identity if it is true for all the values of the angle. Fine. This is the formal definition. अब इसका मतलब क्या हुआ? What will be the trigonometric identity? It is nothing but an equation which will consist of some trigonometric ratios. Of course, क्योंकि trigonometric identity है तो trigonometric ratios को involve करना जरूरी है. So it will consist of trigonometric ratio
and it will be called an identity only if it is true for all the values of x. जैसे कि आइडेंटिटीज ऐसे जैसे हमने एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज पर रखी है, हम जानते हैं दैट a प्लस बी स्क्वायर इज व्हाट, इट इज a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, राइट? सो यहां पर a एंड b की कुछ भी वैल्यूज हो, दिस इक्वेशन इज ऑलवेज गोइंग टू बी ट्रू, राइट? यहां फर्क नहीं पड़ता कि a की वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए या निगेटिव होनी चाहिए, या b की वैल्यूज पॉजिटिव हो सकती है या निगेटिव हो सकती है, ऐसा कोई भी रेस्ट्रिक्शन हमारे पास नहीं होता। a एंड b की सभी वैल्यूज के लिए दिस इक्वेशन इज ऑलवेज गोइंग टू होल्ड। फाइन। So similarly, trigonometric identities will be some equation which will of course consist of some trigonometric ratios for an angle, and it will be called an identity if and only if it will be true for every value of theta, चाहे वो 30 डिग्रीज हो, चाहे वो 40 डिग्रीज हो, चाहे वो 45 डिग्रीज हो, या जो भी वैल्यूज हो। ऑल राइट। सो अब एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का रिलेशन देखते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं। हमने ऑलरेडी पढ़ा है, we already studied that साइन स्क्वायर थीटा प्लस का cos स्क्वायर थीटा इज 1, राइट? सो वी नो दैट दिस इज, अब इसे क्या कह रहे थे हम? इसे हम स्क्वायर रिलेशन कह रहे थे। हमने इसे स्क्वायर रिलेशन का नाम दिया था, रिमेंबर? मैंने कहा था ये वो सारे रिलेशंस आपको याद होने चाहिए, और इस टॉपिक में हमने जितने भी रिलेशंस पढ़े हैं उन सबको हम कहीं ना कहीं यूज कर रहे होंगे। एक बार मैं बेसिक रिवीजन आपका करवाऊंगा और उसके बाद फिर हम क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे। फाइन। तो हमने क्या देखा था? ये एक स्क्वायर रिलेशन हमने पढ़ा था। अब ये आइडेंटिटी क्यों है? दिस इज एन आइडेंटिटी बिकॉज इट विल बी ट्रू फॉर एवरी वैल्यू ऑफ थीटा, चाहे थीटा 0 हो, चाहे थीटा 30 हो, चाहे थीटा 15 हो, चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, कुछ भी वैल्यूज हो थीटा की, उन सभी के लिए ये इक्वेशन हमेशा होल्ड करने वाला है। फाइन। जैसे एग्जांपल के लिए लेट्स सी फॉर 30 डिग्री। फाइन। व्हाट इज साइन 30? साइन 30 इज व्हाट? इट इज 1 by 2. Fine. And cos 30 is what? It is root 3 by 2, है ना? सब एक बार इसको देखते हैं। 1 by 2 whole square is what? It is 1 by 4. 1 by 4. And what is root 3 by 2 whole square? It is nothing but 3 upon 4. So what is it going to be? It is nothing but 1. So यहाँ पर ये रिलेशन होल्ड कर रहा है। फाइन। अब 0 डिग्री के लिए एक बार चेक करते हैं। हमने क्या पढ़ा था? साइन 0 इज व्हाट? साइन 0 इज what? Sin 0 was 0 and cos 0 was 1. ये हमारे पास एक्सियम्स थे, हमने देखा था। तो sin 0 is 0 and cos 0 is 1. 1 square is 1, so it will be again 1. So 1 के लिए 0 डिग्री के लिए भी ये रिलेशन ट्रू हुआ। सिमिलरली अगर हम 45 डिग्रीज के लिए देखना चाहें, इफ वी वांट टू चेक फॉर 45 डिग्रीज, what is sin 45? Sin 45 is 1 upon root 2. So 1 by root 2 square is what? It is 1 by 2. Similarly, cos 45 was also 1 by root 2. Its square will also be 1 upon 2 and it will be 1 again. So ये रिलेशन जो है या ये इक्वेशन जो है, ये थीटा की सारी वैल्यूज के लिए होल्ड करेगा। सारी वैल्यूज के लिए हम चेक नहीं करते, बट हमने प्रूव करा था कि ये रिलेशन तो ट्रू है। फाइन। जितने भी हमारे पास नॉन एंगल्स हैं, जैसे 60 डिग्रीज भी है, 90 डिग्रीज भी है, अगर हम उनके लिए भी चेक करना चाहें तो यू विल फाइंड दैट दिस इक्वेशन इज ट्रू फॉर ऑल ऑफ देम। सो इसे हम एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी कहेंगे। दिस इज व्हाट? दिस इज अ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। ऑलराइट। अब एक रिलेशन और देखते हैं। हमने ये भी पढ़ा था दैट
tan theta is what? Tan theta is sin theta अपॉन cos theta. इसे हमने क्या नाम दिया था? इसे हमने नाम दिया था कोशिएंट रिलेशन, राइट? इसे हम कोशिएंट रिलेशन कह रहे थे. ऑल राइट. अब इसे भी अगर हम चेक करना चाहें तो ये भी सारे ही वैल्यूज के लिए ट्रू होंगी. इफ वी टेक थीटा टू बी 45, then what is tan theta? Tan theta is nothing but tan 45, that is 1. And what is sin 30, sin 45? Sin 45 and cos 45 both are equal, and they will be equal to 1 upon root 2. So this will give you what? This will give you 1 upon root 2. By 1 upon root 2, equation holds for 45 degrees, right? अगर 30 degrees के लिए check करें, then again it will be true, because tan 30 will be what? Tan 30 is 1 upon root 3. Sin 30 will be 1 by 2, and cos 30 will be root 3 by 2. So 1 by 2 upon root 3 by 2, it will give you 1 upon root 3. That will be equal to tan 30. So ये equation भी सारे ही angles के लिए true होने वाली है. So this is also a trigonometric identity. Similarly हमने आगे और भी relations पढ़े थे, जैसे 1 plus tan square theta is sec square theta. और क्या पढ़ा था हमने? 1 plus cot square theta is what? It is cosec square theta. और क्या पढ़ा था हमने? हमने रेसिप्रोकल रिलेशन पढ़ा था, याद है? tan theta into cot theta is what? It is 1. So एक ये रिलेशन पढ़ा था हमने. तो इन्हीं सारे रिलेशंस को यूज करके हमें ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं. ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के क्वेश्चंस किस तरह के होंगे? हमारे पास एक इक्वेशन दी होगी और हमें बेसिकली प्रूव करना होगा दैट लेफ्ट हैंड साइड ऑफ दिस दैट इक्वेशन इज इक्वल टू राइट हैंड साइड ऑफ दैट इक्वेशन. फाइन. ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के सारे क्वेश्चंस में हमें बस यही करना होता है. हमें एक इक्वेशन दी होगी और एक साइड लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्विवेलेंट प्रूव करना है हमें. और वो हम प्रूव कैसे करेंगे? इन्हीं सारे रिलेशंस को जो हमने अभी देखा और जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, उन सभी रिलेशंस को यूज करेंगे एंड कुछ एल्जेब्रिक मैनिपुलेशन और सिंप्लीफिकेशन की यूज से हम उन सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे होंगे. तो अब हम सारे ही क्वेश्चंस एक एक करके क्वेश्चंस लेंगे और क्वेश्चंस के थ्रू अप्रोच डेवलप करने की कोशिश करेंगे. कभी भी हमारे पास कोई भी नया क्वेश्चन आए तो हमारी अप्रोच क्या होनी चाहिए या किस तरीके से उसे उसकी शुरुआत करें, वो धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ डेवलप होगी. तो अब हम क्वेश्चंस लेते हैं. ऑलराइट, सो लेट्स मी सॉल्व गिव यू द फर्स्ट क्वेश्चन. फाइन, लेट्स सी द फर्स्ट क्वेश्चन. व्हाट इज इट? प्रूव दैट. इसमें सारे क्वेश्चंस मैं आपको सॉल्व करूंगा और आप मेरे साथ साथ सॉल्व करते जाओगे और उसके बाद आप अपनी बुक से नए नए क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना. पर आज आप बस सोल्यूशन देखोगे कि मैं किस तरीके से नई नई अप्रोचेस बता रहा हूं, उसको आप अच्छे से नोट करोगे, अच्छे से नोट्स बनाओगे, एंड आफ्टर दैट यू विल अटैक द न्यू क्वेश्चंस. फाइन, सो लेट्स सी. प्रूव दैट. व्हाट इज द क्वेश्चन? 1 minus sin square theta into cos square theta is 1. There is a second part also. 1 plus tan square theta this was wait. This was sec square theta into cos square theta is 1. Fine. And the next part is, let me check it once. Yeah, 1 plus tan square theta into 1 minus sin theta
इंटू 1 प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू 1। ऑल राइट, अब एक एक करके इन सारे पार्ट्स को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। व्हाट इज द फर्स्ट पार्ट? इट इज 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। इस क्वेश्चन में हमें करना क्या है? हमें इस साइड को, इस गिवन एक्सप्रेशन को 1 के इक्वल प्रूव करना है। फाइन, अब कैसे कर सकते हैं? हमने जितने भी रिलेशंस अभी तक पढ़े हैं, हमें पता है उनके यूज से ही हमें ये सॉल्व करना है। कुछ नई चीजें नहीं लानी है, उनका उनका ही यूज करना है कहीं ना कहीं, किसी ना किसी फॉर्म में, और उसके थ्रू ही हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। ऑल राइट, सो अब इन्हें देखकर हमें क्या लगता है, क्या अप्रोच हो सकती है हमारे पास? क्या क्या रिलेशंस पढ़े थे हमने? अभी हमने पीछे देखा था दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1। फाइन, सो यहां से क्या मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाल सकता हूं? कैन आई राइट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा? आई कैन डू सो, इजंट इट? ऐसा लिखा जा सकता है ना, ये रिलेशन हमारे पास ऑलरेडी है, स्क्वायर रिलेशन। सो इसे क्या करा हमने, इसे मैनिपुलेट करा सच दैट वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू हमने क्यों फाइंड करी? क्योंकि क्वेश्चन में है हमारे पास, क्वेश्चन में हमारे पास 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है। सो मैंने क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करा? सबसे पहले मैंने क्वेश्चन को देखा, अब मुझे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा दिखा और मैंने सेक स्क्वायर थीटा देखा। मेरे दिमाग में दो रिलेशन आए। पहला, दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1, सो उसकी हेल्प से मैं इसकी वैल्यू निकाल सकता हूं। दूसरा, एक और मेरे पास रिलेशन आया मेरे दिमाग में, दैट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज सेक स्क्वायर थीटा। हमने ये भी तो पढ़ा था दैट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज व्हाट? इट इज सेक स्क्वायर थीटा। सो मैं अगर चाहूं तो यहां पर सेक स्क्वायर थीटा को भी इससे रिप्लेस कर सकता हूं, पर उससे फर्क क्या पड़ेगा? अगर मैंने यहां पर सपोज 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा लिख भी दिया, आई कैन सी दैट हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स इंक्रीज होते जाएंगे। कुछ सिंप्लीफाई तो नहीं होगा ना? ये 1 इंटू 1 1, देन विल गेट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा एंड देन माइनस साइन स्क्वायर थीटा एंड माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू tan स्क्वायर थीटा। हमें कुछ नया नहीं मिल रहा और हमें कुछ सिंप्लीफाई होता नहीं दिख रहा। फाइन, सो इसीलिए मैंने डिसाइड करा कि क्योंकि इससे कुछ सिंप्लीफाई होता नहीं दिख रहा, देन आई विल यूज दिस रिलेशन। फाइन, पर मेरे दिमाग में दोनों ही रिलेशंस आने चाहिए। दोनों रिलेशंस आए, देन उसको हमने ट्राई करके देखा। अगर मैं पहले ये ट्राई करता तो हो सकता था इसी से क्वेश्चन बन जाता, और अगर इससे क्वेश्चन ना बना ना तो हम फिर दूसरे रिलेशंस पे जाते या और कोई रिलेशंस ढूंढने की कोशिश करते। फाइन, अब मैंने क्या देखा, यहाँ पर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है जो कि साइन कॉस स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है, तो मैं एक बार उसे रिप्लेस कर देता हूं। लेट मी रिप्लेस इट बाय कॉस स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा, and by reciprocal relation we know that this equals to 1 by reciprocal relation, because we know that sec theta is nothing but 1 upon cos theta, so this implies sec theta into cos theta is 1 into cos theta is 1, और अगर हम दोनों साइड स्क्वायर करें देन वी विल गेट cos स्क्वायर थीटा into sec स्क्वायर थीटा इज नथिंग बट 1। सो ये रिजल्ट हमारे लिए प्रूव हो गया। हमने क्या करा, यहाँ पर हमने सिंपली इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को देखा और अपने दिमाग में रिलेशंस ढूंढने की कोशिश करी। जो भी हमने पढ़ रखा है हमने उसे ढूंढने की कोशिश करी, फिर उनके हेल्प से हम कुछ ऐसी मैनिपुलेशन करें यहाँ, या किसी पर्टिकुलर टर्म को किसी पर्टिकुलर टर्म से सब्स्टिट्यूट करें, so that our expression gets simplified and we can reach to the answer. All right, so इसी तरह let's see the second part. सेकेंड पार्ट में हमारे पास क्या है, 1 प्लस
tan square theta into cos square theta is equal to 1. This we have to prove. हम क्या कर रहे हैं, हमने फिर से लेफ्ट हैंड साइड को देखा, हमने देखा that we need to prove it to be equal to 1. अब इसके मैं आपको दो मेथड बताऊंगा, फाइन, ताकि हम समझ सकें। हर क्वेश्चन में ऐसा ही नहीं करना होता कि लेफ्ट हैंड साइड वाले एक्सप्रेशन को राइट हैंड साइड वाले एक्सप्रेशन के इक्वल कर दें। कुछ और अप्रोचेस भी हम ले सकते हैं। दैट्स व्हाई इस क्वेश्चन को मैं आपको दो मेथड से बताने की कोशिश करता हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस सी द फर्स्ट मेथड। और पहला मेथड क्या है हमारे पास, सिंपली सबसे पहले हमने लेफ्ट हैंड साइड को देखा, अब हमें यहाँ पर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा लिखा हुआ दिखा, तो तुरंत मेरे दिमाग में ये बात क्लिक करनी चाहिए दैट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज sec स्क्वायर थीटा। ये हमने पढ़ा है, तो ये क्वेश्चन को देखते ही, इस एक्सप्रेशन को देखते ही हमारे दिमाग में ये बात क्लिक करनी चाहिए। हमें उन सारे रिलेशन से कनेक्ट करना है, इन सारे एक्सप्रेशंस को, इन्हें देखते ही हमारे दिमाग में चीजें क्लिक करनी चाहिए। और ये प्रैक्टिस के साथ ही आएंगी। तो जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते रहोगे वैसे वैसे ये अप्रोच भी आपकी डेवलप होती चली जाएगी। फाइन। सो मैंने क्या करा, इसे मैंने रिप्लेस करा sec स्क्वायर थीटा से, एंड दिस इज cos स्क्वायर थीटा, एंड बाय रेसिप्रोकल रिलेशन वी नो दैट दिस इज इक्वल टू 1। सो अगेन दिस इज प्रूव्ड। यही तो करना था हमें। तो ये तो एक लाइन में हुआ। अब एक और मेथड देखते हैं। वैसे तो दोनों मेथड सेम ही है, बट थोड़ी सी मैनिपुलेशन करूंगा मैं इसमें। लेट्स सी व्हाट आर वी गिवन विथ। वी आर गिवन विथ 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा into cos square theta is 1. Can we take this cos square theta to this side? Of course we can. What will we do? We will write 1 plus tan square theta is nothing but 1 upon cos square theta. And we know that 1 by cos theta is sec theta. So 1 upon cos square theta is what? Sec square theta. Sec square theta. So ultimately what did we get? We get 1 plus tan square theta is what? Sec square theta. So अब हमारे पास ये इक्वेशन कन्वर्ट होकर इस इक्वेशन में आ गया, और हम जानते हैं that 1 plus tan square theta is sec square theta. So we will replace this with sec square theta. So both the sides are equal. So it is proved. Fine. So बहुत सारे क्वेश्चंस में ऐसा हो सकता है कि अगर आप सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड की एक्सप्रेशन को कंसिडर करो तो उसे सिंप्लीफाई करके राइट हैंड साइड के इक्वल करना मुश्किल हो। ये तो इजी क्वेश्चन है, इसलिए यहाँ आपको क्लियरली दिख रहा है, बट आगे जैसे जैसे हम क्वेश्चंस का लेवल इंक्रीज करते जाएंगे वहां धीरे धीरे आपको समझ में आएगा कि हर जगह ये पॉसिबल नहीं है दैट लेफ्ट हैंड साइड विल बी इजीली इक्वल टू द राइट हैंड साइड। वहां पर हमें इस तरह की कुछ मैनिपुलेशंस करनी पड़ सकती है। ऑलराइट, तो एक लास्ट वाला पार्ट भी एक बार चेक करते हैं। Let's look at the last part. What is it? It is 1 plus tan square theta into 1 minus sin theta into 1 plus sin theta is what? 1. अब अगेन इस क्वेश्चन को देख के मेरे दिमाग में ये चीज क्लिक करनी चाहिए दैट 1 plus tan square theta is what? Sec square theta. तो मैं इसे चेंज कर देता हूँ, इसे मैंने रिप्लेस कर दिया sec square theta से, एंड वी आर लेफ्ट विथ 1 minus sin theta into 1 plus sin theta. ऑलराइट, अब आगे क्या? अब इन दोनों को देखकर क्या मैं ये कह सकता हूँ कि ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म के हैं? हमने पढ़ा है ना अलजेब्रा में दैट a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज व्हाट? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये तो हम अलजेब्रा से जानते हैं। अब जब मैंने इसे देखा तो मैंने जैसे ही देखा ये a माइनस बी एंड a प्लस बी के फॉर्म में है, तो मैंने जल्दी से इसे मल्टीप्लाई करके देख लिया। मैंने मन में ही इसे मल्टीप्लाई करा दैट 1 minus sin theta into 1 plus sin theta is what? It is a square minus b square. Here a is 1 and b is sin theta, so it will give me 1 minus sin square theta.
फाइन। और मैंने देखा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा मेरे पास आंसर आया एंड क्विकली मैं उसे कनेक्ट कर पाऊंगा किससे? स्क्वायर रिलेशन बिटवीन साइन थीटा एंड कॉस थीटा, जो हमने प्रीवियस पार्ट्स में देखा था, दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1। हमने देखा था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1, और फिर मैंने क्या लिखा था, दैट कॉस स्क्वायर थीटा इज व्हाट? इट इज 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सो जैसे ही मेरे पास इसे मल्टीप्लाई करके 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आया, मैंने तुरंत इसे कनेक्ट करा क्या कि दिस विल बी इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा, और मुझे दिख रहा है यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा है, तो सेक स्क्वायर थीटा इनटू कॉस स्क्वायर थीटा विल बी व्हाट? 1। तो इसे मैं क्या करूंगा, दिस विल बी इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा इनटू दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस 1 minus sin theta into 1 plus sin theta, that will be equal to 1 minus sin square theta. This will be nothing but sec square theta into cos square theta, and this will give you 1. Hence proved, right? इसी तरह आपको सारे रिलेशंस को जल्दी से जल्दी क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग रिलेट करने की कोशिश करनी है, और आपके दिमाग में ये चीजें तुरंत क्लिक करने लगेंगी। जैसे जैसे आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते जाओगे, वैसे वैसे ये चीजें आपके दिमाग में ऑटोमेटिकली क्लिक करने लगेंगी। इसीलिए मैंने कहा कि आज के लेक्चर में आपको सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस ध्यान से देखने हैं। आपको देखना है कैसे मैं क्वेश्चंस को देखकर कैसे रिलेट कर पा रहा हूं उन सारे इक्वेशंस एंड उन सारे रिलेशन से, एंड देन आपको नए क्वेश्चंस की तरफ बढ़ना है। ऑलराइट, सो लेट्स सी अनदर क्वेश्चन। अब एक इजी क्वेश्चन करा हमने, अब एक थोड़ा सा अच्छा लेवल का क्वेश्चन करते हैं। फाइन, लेट्स लुक एट दिस वन। आज हम 10 से 12 क्वेश्चंस कर रहे होंगे ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए। फाइन, लेट्स सी दिस वन। Prove that square root sec square theta plus cos x square theta equal to tan theta plus cot theta. ऑलराइट, अब हमने क्या देखा? अब हम क्या कर सकते हैं? हमारे पास दो अप्रोच है, या तो हम राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल करें, या तो लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल करें। फाइन, अब मुझे sec स्क्वायर थीटा एंड cos x स्क्वायर थीटा को देखकर सबसे पहले दिमाग में ये चीज क्लिक करनी चाहिए कि हमने स्क्वायर रिलेशंस पढ़ रखा है इससे रिलेटेड। वी नो दैट sec स्क्वायर थीटा इज व्हाट? इट इज 1 plus tan स्क्वायर थीटा, एंड वी नो cos x स्क्वायर थीटा इज व्हाट? इट इज 1 plus cot स्क्वायर थीटा। फाइन, और यहाँ इसे tan थीटा प्लस cot थीटा देख के तो हमारे दिमाग में कुछ नहीं आना चाहिए। ये जरूर पढ़ा है हमने दैट tan थीटा इनटू cot थीटा इज 1। फ्रॉम रेसिप्रोकल रिलेशन वी नो दिस, बट इन दोनों के सम के लिए कोई रिलेशन हमारे पास नहीं है। फाइन, इसलिए हम इसे सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड को देखते हैं। व्हाट इज आवर एलएचएस? इट इज sec स्क्वायर थीटा प्लस cos x स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू, अब इसके स्क्वायर रिलेशंस तो है हमारे पास, तो लेट्स कन्वर्ट देम। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। इसे अगर सिंप्लीफाई करा जाए तो दिस विल बी tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा प्लस 2। फाइन, अब आगे क्या? अब मैंने क्या देखा? अब इसके आगे तो हमें कोई रिलेशन नहीं पता। अब तो हम कुछ, अब tan स्क्वायर थीटा को अगर हम वापस से रिप्लेस करने जाए sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, फिर तो हमारे पास यही एक्सप्रेशन वापस आ जाएगा। अब हमें सोचना है कि और आगे क्या किया जा सकता है। अब हमें दिख रहा है ये दैट दिस इज व्हाट? दिस इज स्क्वायर ऑफ सम क्वांटिटी, लेट्स से a, if this is b, then what we can see? We can see that this is a square, this is b square, and this is 2.
और ये हम रिलेट कर सकते हैं, हमने पढ़ा है ना दैट ए प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab is what? It is a plus b whole square. This we know. यहाँ हमें a square और b square तो दिख रहा है, but here we don't have 2ab, we just have 2. तो ये 2ab कब बनता? जब यहाँ पर ये हमारे पास 2ab होता अगर यहाँ पर हमारे पास tan थीटा इंटू कॉट थीटा भी लिखा होता, है ना? और अगर ध्यान से देखो तो ये लिखा हुआ है। सी हमारे पास क्या था? हमारे पास क्या आया था? We got tan square theta plus cot square theta plus 2. And 2 is what? 2 is nothing but 2 into 1, right? और इस 1 को तो मैं tan theta into cot theta से रिप्लेस कर सकता हूँ ना? It can be easily replaced with tan theta into cot theta, क्योंकि रेसिप्रोकल रिलेशन से हमें पता है कि इसकी वैल्यू 1 आती है। तो अगले स्टेप में इसे रिप्लेस करते हैं। 2 tan theta into cot theta, फाइन। अब हम देख सकते हैं, नाउ दिस इज इन द फॉर्म ऑफ a plus b, a square plus b square plus 2ab. So what is this? This is nothing but a plus b whole square. So we can write this as tan theta plus cot theta whole square. If you remove the square root, this will be what? Tan theta plus cot theta. और ये तो हमें प्रूव करना था। This was the question, right? So this is proved. अब यहाँ मेरी क्या अप्रोच थी? मैंने क्वेश्चन को देखा, पहले मैंने राइट हैंड साइड को देखा, तो मैंने पाया कि tan थीटा प्लस cot थीटा के लिए कोई भी रिलेशन मेरे पास अवेलेबल नहीं है। But when I saw this sec square theta and cosec square theta, then I immediately connected it with square relations of these two trigonometric ratios. I knew that 1 plus tan square theta was sec square theta and 1 plus cot square theta was cosec square theta. So मैंने उससे रिप्लेस करके देखा, फिर उसे सिंप्लीफाई करा, फिर जब मुझे आगे कुछ होता हुआ नहीं दिखा, then again I connected it with this reciprocal relation. फिर मैंने उसका यूज करा एंड सिंप्लीफाई करके फाइनली हमें आंसर मिला। तो इसी तरह आपको एक ही क्वेश्चन में अलग अलग रिलेशंस को यूज करना पड़ सकता है। ये क्वेश्चन देखकर आपको वहां पर दिमाग लगाना है कि कौन से रिलेशन को किस तरीके से और किस जगह पर प्रॉपर्ली यूज करें, सो दैट वी आर एबल टू रीच आउट टू आवर फाइनल आंसर। ऑलराइट, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और देखते हैं। एक क्या, अभी तो हम बहुत सारे क्वेश्चंस देखने वाले हैं। Let's look at the third question. Fine. What is it? Prove that tan A plus sin A upon tan A minus sin A is what? It is equal to sec A plus 1 upon sec A minus 1. फाइन। अब हम चाहे तो किसी भी साइड से स्टार्ट कर सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड से भी स्टार्ट कर सकते हैं, राइट हैंड साइड से भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो मैंने सोचा मैं लेफ्ट हैंड साइड से ही स्टार्ट करता हूँ। फाइन, लेट्स कंसीडर लेफ्ट हैंड साइड। आपने ध्यान दिया होगा मैं हर क्वेश्चन में अलग अलग अप्रोचेस बता रहा हूँ। आप चाहो तो यहाँ राइट हैंड साइड से भी स्टार्ट कर सकते हो। सो दिस इज योर वर्क दैट वंस यू कंप्लीट द लेक्चर, तो आप सारे क्वेश्चंस को जितने भी अप्रोचेस आपके दिमाग में आ रहे हैं उन सभी अप्रोचेस से सॉल्व करने की कोशिश करोगे। एंड इफ यू गेट स्टक समवेयर और कोई भी डाउट हो, देन यू कैन आस्क मी। ऑलराइट, बट आपको अलग अलग अप्रोचेस लगाने हैं। आप जितनी ही अलग अलग अप्रोचेस
यूज करोगे, कहीं पर आप अटकोगे, कुछ क्वेश्चंस गलत होंगे, उनसे ही आप सीखने वाले हो। फाइन। तो यहाँ पर मैं पहले आप लेफ्ट हैंड साइड कंसिडर कर रहा हूं। व्हाट इज इट? इट इज tan a प्लस sin a अपॉन tan a माइनस sin a। अब क्या मेरे पास tan और sin के बीच का कोई रिलेशन है? नहीं है। tan और sin के बीच का कोई रिलेशन हमने नहीं पढ़ रखा। तो अब मैं क्या करूंगा? अब मैं या तो sin a को किसी और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में कन्वर्ट करना चाहूंगा, या तो tan a को। sin a को मैं कहां कन्वर्ट कर सकता हूं? sin a को तो सिंपली डायरेक्टली कहीं कन्वर्ट नहीं किया जा सकता, बट tan a के लिए मेरे पास रिलेशन है जो कि sin a से रिलेट भी करता है। हमने कोशेंट रिलेशन पढ़ा था, रिमेंबर? वी स्टडीड दैट tan a is nothing but sin a upon cos a। फाइन। सो मैंने देखा सिंस tan a is sin a upon cos a, और यहां पर भी sin ऑलरेडी गिवन है, तो मे बी इस साइन और इस साइन का कुछ हो जाए। आगे जब हम सिंप्लीफाई करने जाएं तो मे बी ये कहीं पर कैंसल आउट हो, या कुछ और फॉर्म बन रही हो हमारे पास, जैसे 1 माइनस साइन स्क्वायर a बन सकता है। तो इसलिए मेरे दिमाग में आया कि मैं इसे साइन ए अपॉन कॉस ए में चेंज करूं, क्योंकि साइन ए को तो डायरेक्टली हम कहीं कन्वर्ट नहीं कर सकते। फाइन। सो व्हाट आई विल डू, आई विल कन्वर्ट दिस इनटू साइन ए अपॉन कॉस ए। इसे मैंने लिखा साइन ए अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए बाय साइन ए अपॉन कॉस ए माइनस साइन ए। I can simplify it further. What will it be? Sin A, sorry, sin A plus LCM अगर लेते हैं, then it is sin A plus sin A into cos A by sin A minus cos A। ऑलराइट। अब मुझे चाहिए क्या? अब मैं ये देखूंगा कि मेरा मोटिव क्या है, मुझे प्रूव क्या करना है। फाइन। तो उसके अकॉर्डिंग ही हम आगे प्रोसीड करेंगे ना। हमें प्रूव क्या करना है? वी हैव टू प्रूव दिस साइड टू बी इक्वल टू दिस साइड, और यहां पर मुझे सेक ए दिख रहा है। तो अब मेरी अगली कोशिश क्या होनी चाहिए? नाउ आई विल ट्राई टू जनरेट सेक ए समहाउ हियर। इस साइड किसी ना किसी तरह से मुझे सेक ए लाना है, तभी तो हम इसके पास पहुंच पाएंगे ना। तो अब मेरा अप्रोच क्या होगा? नाउ माय अप्रोच विल बी टू जनरेट सेक ए हियर। अब यहां हम सेक ए कैसे जनरेट कर सकते हैं? सेक ए होता क्या है? सेक ए इज व्हाट? सेक ए इज 1 अपॉन कॉस ए। ये भी हमें रेसिप्रोकल रिलेशन से पता है। फाइन। सो अब मैं क्या करूंगा? इस स्टेप की हमारे पास जरूरत ही नहीं थी, हम यहां पर सिंपली यहां से भी सॉल्व कर सकते थे। हमें क्या करना था? हमें सेक ए को जनरेट करना है। फाइन। सो क्या मैं अगर यहां से आगे प्रोसीड करना चाहूं, तो सेक ए इज व्हाट? 1 अपॉन कॉस ए। क्या मैं ऊपर वाले रिलेशन से साइन ए कॉमन ले सकता हूं? बिल्कुल ले सकता हूं। व्हाट विल बी हियर? यहाँ 1 अपॉन कॉस ए बचेगा, एंड हियर वी विल बी लेफ्ट विथ 1। Similarly, if I take sin a common from the denominator, again I will be left with 1 upon cos a minus 1. This sin a and this sin a will be cancelled, and 1 by cos a is what? Sec a. So it will be simply sec a plus 1 by sec a minus 1. Hence proved. तो ये स्टेप लेने की हमारे पास जरूरत ही नहीं थी, पर हम ऐसे भी कर सकते थे। अगर हमने यहां पर लिया तो अगेन हम यहां पर कुछ कॉमन लेते, कुछ आगे मैनिपुलेशन करते, बट वो क्या होता? नंबर ऑफ स्टेप्स हमारे पास इंक्रीज होते, और हम आगे मे बी स्टक हो जाते कहीं। तो यहां पर सिंपली मुझे दिखने लगा
कि हम यहाँ पर से ही अपने रिजल्ट तक पहुंच सकते हैं, तो मैंने यहाँ से ही मैनिपुलेशन स्टार्ट कर दी। फाइन, इस स्टेप की हमारे पास जरूरत नहीं थी। ये भी हमने प्रूव करा। नाउ लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। This was the third question, right? So let's see. Question number 4. अब एक अच्छा क्वेश्चन देखते हैं। Alright. Prove that sin theta upon 1 plus cos theta plus 1 plus cos theta upon sin theta is 2 cosec theta. See, these questions are new for me also. So ऐसा भी हो सकता है सॉल्व करते करते मैं भी बीच में अटक जाऊं। So आपको भी साथ साथ ध्यान देते रहना है, बिकॉज इन क्वेश्चंस की कोई फिक्स्ड अप्रोच नहीं होती। हमें क्वेश्चंस देखकर सोचना ही पड़ेगा कि हम क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। फाइन, हमें उसी मोमेंट पे क्वेश्चन को देखना है और एनालाइज करना है कि कौन कौन से रिलेशंस हम यूज कर सकते हैं। अब मैंने यहां देखा, इफ आई लुक एट द LHS, व्हाट एम आई गिवन विथ? इट इज sin थीटा by 1 plus cos theta plus 1 plus cos theta upon sin theta. फाइन, अब हमारे पास 1 प्लस कॉस थीटा एंड साइन थीटा, इनका डायरेक्ट रिलेशन तो कुछ भी नहीं है। यहाँ पर कोई भी रिलेशन बनता हुआ हमें नहीं दिख रहा। तो जब पूछना दिख रहा हो तो क्या करेंगे? सिंपली एलसीएम लेकर सिंप्लीफाई करते हैं। इफ वी टेक द एलसीएम, व्हाट विल इट बी? sin theta into 1 plus cos theta. This will be our LCM. This term will get multiplied with sin theta, so we will get sin square theta plus these two will be multiplied. So this will give us 1 plus cos theta whole square. Now अब मैं क्या करूं? अब क्या कर सकते हैं? हमें पता है that sin square theta plus cos square theta is 1 और हमें sin square theta दिख रहा है, तो हम sin square theta plus cos square theta जनरेट करने की कोशिश करेंगे। अगर मैं इस ब्रैकेट को ओपन कर दूं, सॉरी, अगर मैं इसे ओपन कर दूं तो एक cos square theta का टर्म हमारे पास आएगा ना, तो हम उसे इस sin square theta के साथ क्लब करके 1 के इक्वल लिख सकते हैं। फाइन, जरूरी नहीं कि उस अप्रोच से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो ही जाएगा, पर इस एक्सप्रेशन को देखते हुए मेरे दिमाग में ये एक स्टेप आ रहा है, तो मैं उसे ट्राई करूंगा। अगर आपके दिमाग में कुछ और आ रहा है तो आप उसे ट्राई करके देखना एंड देन उसके अकॉर्डिंग फर्दर मूव करना। ऑलराइट, सो व्हाट आई विल डू हियर इज I will open this bracket. So what will I get? I will get 1 plus cos square theta plus 2 cos theta, and this will be left as it is into 1 plus cos theta. Alright. Now what will I do? I will club these two and write it as 1. Right. So sin square plus cos square theta is 1. This is 1. This one will remain as it is. This will be 1 plus 2 cos theta upon sin theta into 1 plus cos theta. This will be 2 plus 2 cos theta upon sin theta into 1 plus cos theta. Now can I take 2 common from the numerator? Of course I can take. Let's take 2 common from the numerator. It will be 1 plus cos theta upon
साइन थीटा इंटू 1 plus cos theta, and this 1 plus cos theta and this 1 plus cos theta will cancel out. This will be equal to 2 upon sin theta, and from reciprocal relation we know that 1 upon sin theta is what? Cosec theta. So it will be equal to 2 cosec theta, and this is what we had to prove. Fine. So in this question what we did? We simply kept on simplifying the left hand side till we can get any trigonometric relation that we have already studied. Fine. ये भी इजी था, ज्यादा मैनिपुलेशन नहीं थी इसमें. Now let's have a look at another question. This will be question 5. एक और अच्छा क्वेश्चन देखते हैं. बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे हमें आज. let me see कोई एक अच्छा क्वेश्चन मिले. This will be easy. Fine. Prove that sin theta plus cos theta upon sin theta minus cos theta plus sin theta minus cos theta upon sin theta plus cos theta is equal to 2 times sec square theta upon tan square theta minus 1. Minus 1. Alright. So what will we do? We will consider the left hand side. Let's consider the left hand side. What is it? Sin theta plus cos theta upon sin theta minus cos theta plus sin theta minus cos theta by sin theta plus cos theta. So अब क्या करें? अब अगेन हमारे पास कोई डायरेक्ट रिलेशन तो नहीं दिख रहा, हमें कोई डायरेक्ट रिलेशन नजर नहीं आ रहा. सो इसे सिंप्लीफाई करते हैं. एलसीएम लेकर सिंप्लीफाई करेंगे. वी विल टेक द एलसीएम. व्हाट विल इट बी? sin theta minus cos theta into sin theta plus cos theta. Now these two will be multiplied, so we will be left with sin theta plus cos theta whole square plus these two will be multiplied. This will give us sin theta minus cos theta whole square. Fine. अब इन दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं, so we will be left with sin a plus, this is a minus b into a plus b, so this will give us a square minus b square, that is sin square theta minus cos square theta. Fine. This will be what? Sin theta plus cot theta whole square plus sin theta minus cos theta whole square upon sin square theta minus cos square theta. फाइन. अब अगर यहाँ प्लस होता फिर तो हमारे पास डायरेक्ट रिलेशन था, दैट इज व्हाट? sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज 1. पर अब यहाँ पर हमारे पास माइनस गिवन है, तो अब हम कोशिश करेंगे इसे सिंप्लीफाई करने की. तो इसे सिंप्लीफाई करके देखते हैं. डायरेक्ट रिलेशन है नहीं तो हमें कुछ ना कुछ तो करना ही होगा.
And if we are left with nothing, then what will we do? We will simply keep on simplifying the expression till we get any relation, or we can find some manipulation that can be done to the expression so that we can arrive at certain relation that we have already studied. Fine. So अब क्या करेंगे, इससे सिंपली ओपन करते हैं ब्रैकेट को. दिस इज व्हाट, a plus b square. This will give me what? Sin square theta plus cos square theta plus this will give me what? Sin square theta plus cos square theta plus 2 sin theta cos theta, and similarly this will give me what? Sin square theta plus cos square theta minus 2 sin theta cos theta, because a minus b square is what? A square plus b square minus 2ab, and this will remain as it is, sin square theta minus cos square theta. Now this 2 sin theta cos theta and minus 2 sin theta cos theta will be cancelled out. So what are we left with? 2 times sin square theta plus 2 times cos square theta. That can be written as 2 into sin square theta plus cos square theta upon sin square theta माइनस cos square theta. अब हम क्या कर सकते हैं? अब हमारे पास और कोई रिलेशन नजर नहीं आ रहा है, और तो कोई रिलेशन नजर नहीं आ रहा है हमें. एक रिलेशन है, नजर कैसे नहीं आ रहा? दिस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज व्हाट? इट इज 1. ये तो हमने पढ़ा था ना. दिस इज व्हाट? दिस इज नथिंग बट स्क्वायर रिलेशन, दैट इज 1. So this will give us 2 times sin square theta minus cos square theta. Let me write it on the next page. What did we have? We had 2 upon sin square theta minus cos square theta. अब हमें बनाना क्या था? अब हम वापस राइट हैंड साइड की ओर देखेंगे. यहां पर हमारे पास क्या था? 2 sec स्क्वायर थीटा अपॉन tan स्क्वायर थीटा माइनस 1. सो डिनोमिनेटर में हमें tan स्क्वायर थीटा चाहिए, राइट? डिनोमिनेटर में हमें tan स्क्वायर थीटा चाहिए. अब tan स्क्वायर थीटा कब आएगा? अगर ये इसे मैं नीचे cos स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर देता. क्या कहा मैंने? इसे अगर मैं cos स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर देता तो ये तो tan स्क्वायर थीटा बन जाता, राइट? पर ऐसा तो हम कर नहीं सकते कि किसी एक टर्म को किसी पर्टिकुलर टर्म से डिवाइड कर दिया. वो तो पॉसिबल नहीं है ना फिर, क्योंकि हमारे पास गिवन एक्सप्रेशन तो ये है. हमें कुछ ऐसी मैनिपुलेशन करनी है सच दैट दिस एक्सप्रेशन डजंट गेट चेंज्ड. ये जो हमारे पास एक्सप्रेशन है ये चेंज नहीं होना चाहिए. हमें ऐसी ही मैनिपुलेशन अलाउड होती हैं. तो अब मैं क्या कर सकता हूं? मैंने देखा मुझे यहां तो नीचे cos स्क्वायर थीटा चाहिए. सो अगर मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, क्या कहा मैंने? अगर मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को ही cos स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दूं तो ऐसा तो हम कर सकते हैं ना. अगर हमारे पास कोई रेशियो है, सपोज 4 अपॉन लेट्स से 16, इसे तो हम ऊपर भी 4 से डिवाइड कर सकते हैं, नीचे भी 4 से डिवाइड कर सकते हैं, बिकॉज दिस विल बी व्हाट? दिस विल बी 4 अपॉन 4 इंटू 4 अपॉन 16. सो अगेन दिस विल बी इक्वल टू 4 अपॉन 16 ओनली. सो अगर हम किसी भी रेशियो में न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को ही सेम नंबर से डिवाइड करते हैं, देन द वैल्यू ऑफ रेशियो रिमेन्स सेम. फाइन. सो अब मैं क्या करूंगा? मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को ही cos पर थीटा से डिवाइड करूंगा. what will it be? It will be 2 upon cos square theta by sin square theta by cos square theta minus cos square theta by
cos square theta. Now 1 by 1, this is what? 2 by cos square theta. So this 1 by cos square theta can be written as sec square theta from the reciprocal relation, of course. So this will be 2 sec square theta upon this sin square theta minus by cos square theta is what? It is tan square theta. And this will be cancelled out, that will be -1. So क्या हमें यही प्रूव करना था? Let's see. 2 sec square theta by tan square theta minus 1. Of course, यही प्रूव करना था हमें, जो कि हमने प्रूव कर लिया. फाइन. तो इसी तरह से सारे क्वेश्चंस में हमें प्रोसीड करना है. आप देख सकते हो अभी तक हमारे सारे क्वेश्चंस की अप्रोचेस अलग अलग रही हैं. फाइन. We have used the same relations in all the questions, but the approach was different. Somewhere we could simply see certain relations and we just replaced it or substituted it. Somewhere we could not see any direct relation, so we kept on simplifying the expression until we got something or we could generate something so that we could use the relations available to us. Right? अब अगला क्वेश्चन देखते हैं. This question was what? This was fifth question. Now let's move on to the next question. नेक्स्ट पेज पर ही स्टार्ट करते हैं. Let's go with this one. All right. This will be our sixth question. Prove that sin A plus cosec A whole square plus cos A plus sec A whole square equals to 7 plus tan square A plus cot square A. Fine. Again, we can start the question from either LHS or the right hand side. मैंने डिसाइड करा मैं लेफ्ट हैंड साइड से ही प्रोसीड करूंगा क्योंकि यहाँ मुझे साइन कॉसेक कॉस और सेक दिख रहे हैं जो कि मेरे अकॉर्डिंग इजी है. आप चाहो तो यहां से भी स्टार्ट कर सकते हो. फाइन. बट मैं लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करता हूं. लेट्स सी व्हाट आर वी हैविंग हियर. वी हैव साइन ए प्लस कॉसेक ए होल स्क्वायर प्लस cos A प्लस sec A होल स्क्वायर. अब मेरे पास क्या ऑप्शन बचता है? कुछ डायरेक्ट रिलेशन तो मुझे दिख नहीं रहा. सो व्हाट विल आई डू? आई विल ट्राई टू सिंप्लीफाई इट फर्दर. एंड सिंप्लीफाई कैसे करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स ओपन these brackets. If I open this, what will I be left with? I will get sin square A plus cosec square A plus 2 times sin A into cosec A, and here I will get cos square A plus sec square A plus 2 times cos A into sec A. Now what? See, here I can make use of two relations. First of all, I see here sin square A and this cos square A. These two can be clubbed and can be written as 1. Fine. Now what? From reciprocal relation, we can see that sin A into cosec A is 1 and cos A into sec A is 1. This will be what? 2 into 1, that is 2. Again, this will be what? Cos A into sec A is 1. So again, it will be 2.
and we are left with cos x square a plus sec square a, that is equal to 2 plus 2 plus 1, 4 plus 1, 5. 5 plus cos x square a plus sec square a. Now what? अब हमने क्या देखा? हमें राइट हैंड साइड में tan स्क्वायर a एंड cos स्क्वायर a, cot स्क्वायर a की नीड है, और यहाँ पर हमारे पास क्या है? cos x square and sec square. But we know the square relations of these two trigonometric ratios, right? So we will make use of them. This will be equal to 5. Now this cos x square theta can be replaced with 1 plus cot square theta, and this sec square a can be replaced with 1 plus tan square a. Sorry, this is not theta, this is a. Now what? Now this one and this one will be added to this, so we will get 7 plus tan square a plus cot square a. And this is what we had to prove. Fine. इजी था ये भी, ज्यादा कुछ तो करा नहीं हमने, सिंपली लेफ्ट हैंड साइड को लिया और उससे सिंप्लीफाई करते चले गए. फाइन. अब वैसे ही अगला क्वेश्चन देखते हैं. दिस वाज सिक्स्थ. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द सेवेंथ क्वेश्चन. एक ऐसा क्वेश्चन भी देखते हैं. नाउ लेट्स सी. Prove that 1 plus tan square a by 1 plus cot square a equal to 1 minus tan a by 1 minus cot a whole squared. All right. अब यहां हम क्या करेंगे? सी, यहां हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में हमें सिंपली दिख रहा है दैट वी कैन सी टू रिलेशंस दैट वी हैव स्टडी, टू स्क्वायर रिलेशन. फाइन. बट राइट हैंड साइड में हमारे पास कुछ नहीं है, कोई डायरेक्ट रिलेशन तो नहीं दिख रहा ना हमें. तो इसे सिंप्लीफाई करते हैं. पहले पहले तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास इजी है, तो उसे जल्दी से सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं. व्हाट डू वी हैव इन द लेफ्ट हैंड साइड? 1 plus tan square a by 1 plus cot square a. This is nothing but sec square a upon cos x square a. इसे अगर मैं सिंप्लीफाई करके लिखना चाहूं, this sec square a can be written as 1 upon cos square a. And this cos x square in the denominator can be written as 1 upon sin square a. So this cos square a by sin square is what? Cos a by sin a is what? Cot a. So this can be written as 1 upon cot square a, and we know that 1 by cot a is what? Tan a. So this will be equal to tan square a. तो ये मैंने क्या करा? ये मैंने लेफ्ट हैंड को सिंप्लीफाई करा. जब तक मैं सिंप्लीफाई करता जा सकता था, तब तक मैंने सिंप्लीफाई करा ताकि मेरे पास एक सिंगल टर्म आ जाए. फाइन. Now let's have a look at right hand side. This is what? 1 minus tan a by 1 minus cot a whole square. अब मुझे क्या करना है? What is my motive? I have to prove left hand side equal to right hand side. LHS equal to RHS तो करना है हमें. And in LHS we have got tan square a. And here we have tan a and cot a. तो हमें हमारे दिमाग में क्या क्लिक करा? हमने देखा दैट इन लेफ्ट हैंड साइड हमें tan स्क्वायर ए, tan के टर्म्स में चाहिए. tan के टर्म्स में हमारा आंसर है ऑलरेडी.
सो हम इसे भी tan के टर्म्स में ही लाने की कोशिश करेंगे ना. फाइन. सो यहाँ पे तो हमारे पास ऑलरेडी tan है. दिस वन इज व्हाट, दिस वन इज cot. सो मैं इसे tan में चेंज कर देता हूँ, तो फिर हमारे पास सिर्फ tan ही बचेगा. एंड देन फर्दर वी विल सिंप्लीफाई टू गेट दिस tan square a. Fine. So what will I do? Let me simply wait. Change this one into tan 1 minus 1 upon tan a. This will be what? Sorry, whole square. This will be 1 minus tan a by. Now we will take the LCM here. This will be what? Tan a minus 1 upon tan a, and this whole squared. This can be written as 1 minus tan a. This tan a will go in the numerator. Tan a by this whole will be squared. This is tan a minus 1, this is 1 minus tan a. So can I cancel it? And this will be minus 1. Since tan a minus 1 into minus 1 will be 1 minus tan a. So what will be left with? Minus of tan a whole square, and this will be nothing but equal to tan square a. That is equal to left hand side, hence proved. इस क्वेश्चन में मैं नई चीज क्या देखी? सी, हमने डायरेक्टली लेफ्ट हैंड साइड को लेकर राइट हैंड साइड की इक्वल नहीं करा, बल्कि हमने दोनों ही साइड को सेपरेटली सिंप्लीफाई करा till we get the simplest value, and that's how we proved it. दोनों ही साइड को हमने लिया, दोनों साइड को सिंपलेस्ट टर्म्स में सिंप्लीफाई करा, एंड उस तरीके से हमने इसे प्रूव करा है, ना कि सिर्फ किसी एक पर्टिकुलर साइड को लिया और उसे दूसरे साइड के इक्वल प्रूव कर दिया. सो बहुत सारे क्वेश्चंस में हमें ये भी करना पड़ सकता है दैट we will need to consider both the sides and simplify them separately and reach out to the common value. Alright, now let's see one more question. This will be question 8. Prove that square root 1 minus sine theta by 1 plus sine theta is equal to sec theta minus tan theta. फाइन. अब यहाँ क्या करेंगे? फिर से लेफ्ट हैंड साइड को कंसिडर करते हैं. एक अप्रोच तो यही सीखे ना हमने कि लेफ्ट हैंड साइड को कंसिडर करें और उसे सिंप्लीफाई करके राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव कर दें. सो अगेन हमने लेफ्ट हैंड साइड को कंसिडर करा. दिस इज व्हाट? दिस इज 1 minus sin theta by under root 1 plus sin theta. अब इसे मैंने ऐसा कैसे लिखा? So in the chapter of exponents and powers in lower classes we have studied that root a by b is what? It is a by b whole power 1 by 2, and if we have an expression like this, this can be written as a power 1 by 2 upon b power 1 by 2. This is nothing but root a upon root b. इसे ही मैंने यहाँ यूज कर लिया. फाइन. अब मुझे क्या दिख रहा है? कुछ भी समझ आ रहा है यहाँ पे? नहीं. कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है हमारे पास. किसी भी टर्म को हम किसी और टर्म में लिख नहीं सकते.
हाँ, ऐसा कर सकते थे हम, इस वन को साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते थे. वी कुड हैव रिटन दिस साइन स्क्वायर थीटा, वी कुड हैव यूज दिस वन. इस वन को हम इससे रिप्लेस करते, पर उसके बाद क्या, उसके बाद तो कुछ होता हुआ नहीं दिख रहा मुझे, क्योंकि हमारे पास एक कॉस की टर्म एक्स्ट्रा आएगी और कुछ सिंप्लीफाई तो होगा नहीं. सो मैंने क्या करा, क्योंकि मुझे यहाँ पर स्क्वायर रूट की टर्म्स दिख रही हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना इसे रैशनलाइज करा जाए. हमने रैशनलाइजेशन पढ़ा था लोअर क्लासेस में, हमने इरेशनल नंबर्स में, रैशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स में रैशनलाइजेशन पढ़ रखा है. फाइन. यहाँ पर मैंने क्या करा, आई जस्ट डिसाइडेड टू मल्टीप्लाई दिस expression by this and then I will divide this. मैंने क्या करा, मैंने अंडर रूट वन माइनस साइन थीटा से मल्टीप्लाई भी करा और डिवाइड भी कर दिया. और ऐसा मैंने क्यों करा, ये आपको आगे पता चलेगा. दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, दिस विल बी वन माइनस साइन थीटा into 1 minus sin theta by 1 plus sin theta into 1 minus sin theta. This is what we can write it as this 1 minus sin theta into 1 minus sin theta, that is 1 minus sin theta whole square by 1 plus sin theta into 1 minus sin theta. This is what, a plus b into a minus b, and that will give us a square minus b square, that is 1 minus sin square theta. Fine. Now I can make use of this relation. You can see, right? You can simply observe. Let me write it as 1 minus sin theta whole square upon 1 minus sin square theta is what? It is nothing but cos square theta. This will be nothing but cos square theta. So this will give us 1 minus sin theta whole square. And if we take this cos square theta out of this square root, this will be simply cos theta. Fine. Now what? Let me write it on the next page. What was the expression? 1 minus sin theta whole square upon cos of theta. और हमें इसे किसके इक्वल प्रूव करना था? We had to prove it to be equal to sec theta minus tan theta. So, अब हमें इस इक्वेशन में sec थीटा और tan थीटा क्रिएट करने की कोशिश करनी है. फाइन. We have to generate sec theta into sec theta minus tan theta. It was minus, right? हाँ, sec theta minus tan theta. तो यहाँ पर हम इसे भी स्क्वायर रूट रिमूव कर सकते हैं. इससे अगर हम बाहर ले गए तो दिस विल बी व्हाट, दिस विल बी 1 माइनस sin theta upon cos theta. Now can we separate it? Just remember the initial moments of the lecture I explained it कि हम सेपरेट करके भी मैनिपुलेट कर सकते हैं. यहाँ पर इसे क्या मैं 1 अपॉन cos थीटा माइनस sin थीटा अपॉन cos थीटा लिख सकता हूँ. बिल्कुल लिख सकता हूँ. 1 अपॉन cos थीटा is what? It is sec थीटा. And sin theta upon cos theta is what? It is tan theta. And this is what I had to prove. Right? ये तो हमें प्रूव करना था. Alright? इजी था ये भी. यहाँ पर हमने एक नई टेक्निक सीखी, that was rationalization, जो कि हम irrational numbers में कर रहे थे. अब यहाँ trigonometric identities को प्रूव करने में भी हम उस टेक्निक का यूज लेंगे. जहां भी हमें स्क्वायर रूट दिखे और सिंप्लीफाई होता ना दिखे क्वेश्चन, तो वहां हम rationalization यूज कर सकते हैं. This was 9th question, I guess. Prove that
tan square a minus tan square b equals to sin square a minus sin square b upon cos square a cos square b equals to cos square e b minus cos square a upon cos square b into cos square a. So this is a new type of question. यहाँ पर हमारे पास इक्वालिटी में तीन टर्म्स हैं और इसे हमें प्रूव करना है. So, इसका मतलब क्या हुआ, हमें इसको इस टर्म के इक्वल भी प्रूव करना है एंड इसको इस टर्म के भी इक्वल प्रूव करना है. इक्वालिटी में तीन टर्म्स होने का मतलब ही ये हुआ दैट द फर्स्ट क्वांटिटी इज इक्वल टू द सेकंड क्वांटिटी, sorry, and the first quantity is equal to third quantity as well, and similarly the second quantity will also be equal to third quantity. Fine, so let's try to prove them one by one. Let's consider the left hand side, that is tan square a minus tan square b, and on the right hand side of the equation we can see that all we have is sin and cos. इन दोनों ही टर्म्स में हमें सिर्फ sin and cos के ही टर्म्स दिख रहे हैं. फाइन, तो हम क्या करेंगे, we will convert this tan square a and this tan square b in the terms of sin and cos. How can I do that? Let's see. I can write this tan square a as sin square a upon cos square a and this tan square b as sin square b upon cos square b. Fine. Now what? Can I take the LCM? Of course I can. Let's take the LCM. LCM will be what? Cos square a into cos square b. This will be sin square a into cos square b minus sin square b into cos square a. Now what? अब हमें चाहिए क्या? इस टर्म में लेट्स नेम दिस एज 1. इस यहां पर हमें सिर्फ साइन स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर बी, दैट इज सिर्फ साइन ही चाहिए हमें. कॉस की तो नीड है नहीं न्यूमरेटर में हमें इसके लिए. तो हम क्या करेंगे, जहां पर भी हमारे पास कॉस की टर्म है दैट इज कॉस स्क्वायर बी एंड कॉस स्क्वायर ए, वी विल ट्राई टू कन्वर्ट दिस इनटू साइन साइन की टर्म. एंड हाउ कैन वी डू दैट? We will again make use of the square relation that we have, that is sin square a plus cos square a is 1, and similarly sin square b plus cos square b is 1. These two equations we already have. Now what? Can we write this cos square b as 1 minus sin square b? लिख सकते हैं ना. तो इसे मैंने क्या लिखा, 1 minus sin square b. Now this sin square b will remain as it is, and this cos square a can be written as 1 minus sin square a. Alright, and the denominator will remain as it is. Now we will simplify it. This will be what? Sin square a minus sin square a into sin square b minus sin square b. This minus and this minus will be plus sin square b
into sine square A upon what? Cos square A into cos square B. Now you can see this sine square A sine square B and this sine square A sine square B will be cancelled out, and we will be left with what? Sine square A minus sine square B upon cos square A into cos square B. So this is proved. What did I prove? I proved that this tan square A minus tan square B is equal to this one. Now what do I need to do? Now I have to prove this to be equal to this third term. अब मुझे इसे इसके इक्वल प्रूव करना है. अब वो कैसे करेंगे? सी, यहाँ तक तो हम सिंप्लीफाई कर चुके हैं. अब यहाँ पर ही कुछ ऐसी मैनिपुलेशन करें जिससे हमें ये टर्म मिल जाए. Let's see how can we do it. Let me write this again. This is what? Sine square A into cos square B minus sine square B into cos square A. Sine square B into cos square A upon I guess it was cos square B into cos square A. Now let's see. यहाँ इस थर्ड टर्म में न्यूमरेटर में we already have cos square B and cos square A and sin square A और sin square B की कोई भी टर्म हमारे पास नहीं है. So न्यूमरेटर में हमारे पास सिर्फ cos का टर्म है. So we will try to convert the numerator here in terms of cos. अब ये हम कैसे कर सकते हैं? We can just replace this sin square A by 1 minus cos square A. This will be cos square B minus 1 minus cos square B into cos square A upon this. Alright, now what? We can just multiply. This will give you cos square B minus cos square A into cos square B minus cos square A minus cos square A into cos square B upon cos square B into cos square A. Now we will open this bracket. This will give us what? Cos square B minus cos square A cos square B minus of cos square A and plus of cos square A into cos square B divided by cos square B into cos square A. Now these two terms will get cancelled out and we will be left with cos square B sorry, minus cos square A by cos square B into cos square A. And I guess this is what we had to prove. Cos square B minus cos square A upon cos square B into cos square A. Fine. यहाँ पर हमने क्या करा? Since three terms were there in the equation, so first of all we tried to prove the first term equal to second term and then the first term to be equal to the third term. Alright. काफी नए तरह के क्वेश्चंस हमने ऑलरेडी देख लिए हैं. Now what we'll do, we'll just see a different kind of question today. Try to just first read the question and try to understand the language and then proceed accordingly. What is it? Let's see. If
x is equal to a sin theta plus b cos theta and y is equal to a cos theta minus b sin theta. Fine. Now what we have to do, we have to prove that x square plus y square is equal to what? It is equal to a square plus b square. ऑलराइट, अब हमें क्या देखा, हमें प्रूव करना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. दैट मीन्स वी हैव टू समहाउ रिमूव दिस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फ्रॉम दीज टू इक्वेशंस, क्योंकि अल्टीमेटली तो हमारे पास सिर्फ ए स्क्वायर एंड बी स्क्वायर ही आ रहे हैं. तो इन साइज इस साइन स्क्वायर साइन थीटा एंड कॉस थीटा इन्हें हमें रिमूव करना होगा. अब ये कैसे करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स राइट द गिवन डेटा, दैट इज एक्स इज व्हाट, a sin theta plus b cos theta and y is a cos theta minus b sin theta. अब क्योंकि मुझे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर भी चाहिए, तो मैं मेरे दिमाग में क्या आया, आई थॉट कि मैं क्यों ना दोनों ही इक्वेशंस की स्क्वायरिंग कर दूं. अगर मैं इसे स्क्वायर करूंगा तो हमारे पास यहाँ एक्स स्क्वायर आएगा और इसे अगर स्क्वायर करूंगा तो यहाँ वाई स्क्वायर आएगा, एंड देन वी कैन ऐड द टू इक्वेशंस ऑब्टेन्ड. ऑलराइट, सो लेट्स स्क्वायर, squaring on both sides, we get what? X square is what? A sin theta plus B cos theta whole squared. That can be opened as A square sin square theta plus B square cos square theta plus 2AB sin theta cos theta. Let's name this as equation 1. Now if we square this, what are we going to get? We will get y square equals a square cos square theta plus b square sin square theta minus 2ab sin theta into cos theta. Fine. We required x square plus y square in the question, so what will we do? We will simply add equations 1 and 2. What we will do? We will add 1 and equation 2. दोनों को मैंने ऐड करा, so what will I get? I will get x square plus y square equals to a square sin square theta plus b square cos square theta plus 2ab sin theta into cos theta plus now these terms, that is a square cos square theta plus b square sin square theta minus 2ab sin theta into cos theta. And clearly it can be seen that these two terms will get cancelled out. What will be left? We will be left with a square sin theta plus a square cos square theta. Can we take a square common? What will be left? Sin square theta from this term and plus ka cos square theta from this term. Similarly, we can take b square common from these two terms. This will be what? B square. Here cos square theta will be left, and here sin square theta will be left. And this is what? We know this is equal to 1 from the square relation. So this will give you finally a square plus b square. और यही तो हमें प्रूव करना था, that x square plus y square is equal to a square plus b square. So यहाँ हमने क्या करा, हमारे पास x एंड y की वैल्यूज दी हुई थी साइन एंड कॉस के टर्म्स में, एंड
जो हमें प्रूव करना था उसके अकॉर्डिंग हमें इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को एलिमिनेट करना था। फाइन। तो उसे एलिमिनेट करने के लिए मैंने सोचा क्यों ना स्क्वायरिंग कर दी जाए, क्योंकि क्वेश्चन में भी हमारे पास स्क्वायर्स की नीड है। दैट्स व्हाई व्हाट आई डिड, आई स्क्वायर्ड बोथ द इक्वेशंस एंड देन आई एडेड देम एंड अल्टीमेटली व्हाट वी गॉट दिस वन। फाइन। अब इस तरह का एक लास्ट क्वेश्चन हम देखेंगे एंड उसके बाद वी विल जस्ट क्लोज दिस टॉपिक। लेट्स सी अनदर क्वेश्चन। if if sec theta plus tan theta is equal to m, then show that m square minus 1 upon m square plus 1 is equal to sin theta. All right, this we have to prove. अब इसे कैसे प्रूव करें? See, what are we given with? We already have the value of m, and that is equal to sec theta plus tan theta. And what do we have to do? We have to prove this. So क्या करें हम? Can we just simply substitute this m with this one? Of course we can. So let's consider LHS. LHS is what? M square minus 1 upon M square plus 1, and we will put sec theta plus tan theta in place of M. So we will get sec theta plus tan theta whole square minus 1 by sec theta plus tan theta whole square plus 1. Now what? We will simply open the brackets. What will we get? This will give us sec square theta plus tan square theta plus 2 sec theta tan theta minus 1 upon sec square theta plus tan square theta plus 2 sec theta into tan theta plus 1. Now what? See, we know that 1 plus, let me write it with different color. We know that 1 plus tan square theta is what? It is sec square theta. Fine. So, sec square theta minus 1 will be what? It will be tan square theta. Clearly we can see that, right? So, can we substitute this sec square theta minus 1 with tan square theta? Of course we can. So, what will we do? We will write it. Let me do. Let me just erase it. This is what? Tan square theta and plus this tan square theta, that is 2 tan square theta. 2 tan square theta plus 2 sec theta into tan theta upon. Now what will be this? 1 plus tan square theta. This will be 2 sec square theta. And this, sorry, 1 plus tan square theta is what? Sec square theta. And this sec square theta will be added. So we will get 2 sec square theta plus 2 sec theta into tan theta. We can take 2 common from both numerator and denominator and cancel it. So we will be left with tan square theta plus sec theta into tan theta upon
sec square theta plus sec theta into tan theta. Now we can do what? Can we take tan theta common in the numerator? Of course we can. Let's take tan theta common. What are we left with? Here we will be left with single tan theta plus sec theta will be left here. What can we take common in the denominator? Here we can take sec theta as common. So let's take sec theta as common. So we will be left with sec theta plus tan theta. Now clearly these two can be cancelled out and we will be left with tan theta upon sec theta. Let's look here. What did we have? We had tan theta upon sec theta. And what did we require? हमें इसे प्रूव किसके इक्वल करना था? We had to prove it to be equal to sin theta. So what will we do? We will change both these in terms of sin और cos. कर सकते हैं ना ऐसा, ताकि मे भी कुछ cos की टर्म कैंसिल हो जाए और हमारे पास sin थीटा रह जाए. ये अप्रोच मेरे दिमाग में आई. मैंने क्या करा? I just substituted tan theta to be sin theta upon cos theta. And this sec theta is what? Sec theta. And from reciprocal relation, we know the product of these two is 1. So it will give me sin theta. And this is what I had to prove. So hence, it is proved. Easy था, ज़्यादा हमें कुछ करना नहीं था. हमने बस, हमारे पास m की वैल्यू sec और tan के टर्म्स में दी हुई थी और कुछ एक्सप्रेशन था हमारे पास जिसे हमें sin थीटा के इक्वल प्रूव करना था. So what we did, we just substituted the value of m in that expression and simplified it. So आज हमने क्या देखा? हमने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पढ़ी एंड ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में हमने क्वेश्चंस करे. हर क्वेश्चन में हमने देखा हमारे पास अलग अलग अप्रोच हो सकते थे. कहीं हमें रैशनलाइज करने की जरूरत पड़ी, कहीं हमें डायरेक्ट रिलेशन दिख रहा था तो हमने वहां डायरेक्ट रिलेशन यूज करा, एंड समवेयर वी कुड नॉट सी अ डायरेक्ट रिलेशन, सो वी ट्राई टू जनरेट समथिंग so that we can use the relations we already have, right? So ये अप्रोच होती है हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में. तो आज तो हमने कुछ बेसिक क्वेश्चंस करे हैं, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चंस हमने नहीं देखे हैं. What we will have in the next class? In the next class, we will have a problem session specifically dedicated to this trigonometric identities, and we will solve a lot of questions from this topic. वहां हम जितने भी तरीके के क्वेश्चंस होंगे उन सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे. और उस दिन, उस लेक्चर में मैं क्वेश्चंस आर डी शर्मा के भी लूंगा, एनसीईआरटी के भी लूंगा और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी लूंगा. उस वाले लेक्चर को अगर आपने पूरा करा, अगर आपने सारे क्वेश्चंस सॉल्व करे खुद से, और आज वाले लेक्चर्स में भी मैंने जितने क्वेश्चंस कराए हैं, इफ यू सॉल्व देम बाय योर ओन, देन आई एम श्योर यू वोंट फाइंड एनी डिफिकल्टी इन दिस टॉपिक. एंड जैसा कि मैंने कहा, दिस टॉपिक रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस, सो दिस इज वेरी नेसेसरी फॉर यू कि आप अलग अलग बुक से, अलग अलग रिसोर्सेज से इस टॉपिक के जितने भी क्वेश्चंस हो सके प्रैक्टिस करते जाओ. ऑलराइट, सो आई विल स्टॉप हियर फॉर टुडे. Till then, keep studying, stay healthy, and thanks for watching.